Good morning to all my dear students. I hope that you all are fine. Today we are going to start the third chapter of your reader book, Two Stories About Flying. So in this chapter you will read two stories. First story is His First Flight by Liam O'Flaherty and second is The Black Aeroplane by Frederick Forsyth. So in this video we are going to start the first story, His First Flight by Liam O'Flaherty, who was a major Irish novelist and story writer in the first part of the 20th century. He is well known for his short stories. So this story, His First Flight, is the story of a young seagull who is afraid of flying. Seagull is a seabird who lives nearby a sea. You may have seen in the Discovery Channel a seabird who dives down to catch the fish from the sea and then flew upwards. So the young seagull, afraid of flying, he thought that his feather would not support him and he would fall down and die. So how he overcomes his fear and made his first flight, you will read in this story. So let's start the story. The young seagull was alone on his ledge. So ledge क्या होता है यहाँ पे? A narrow horizontal shelf projecting from a wall or a cliff. एक चट्टान से जो बाहर को निकला हुआ किनारा होता है उसको बोलते हैं लेज. तो जो यंग सीगल है, वो जो छोटा बच्चा है जो सीगल का, वो अपनी लेज पर यानी कि उस चट्टान पर, चट्टान का जो किनारा होता है वहाँ पे बिल्कुल अकेला था. His two brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. और उसके जो टू ब्रदर्स थे, दो भाई और उसकी जो सिस्टर, वो ऑलरेडी जो है एक दिन पहले ही अपनी उड़ान भर चुके थे, उड़ना सीख चुके थे. और लेकिन जो यंग सीगल था उसको अभी भी उनके साथ उड़ने में डर लगता था. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. तो किसी तरह से जो है बहुत ही हिम्मत करके जो है वो थोड़ा सा आगे की तरफ जो है लेज के बिल्कुल ब्रिंक माने क्या होता है? किनारे. जो लेज थी, जो किनारा था, उसके बिल्कुल आउटस्कर्ट, बिल्कुल किनारे पर आकर थोड़ा सा दौड़ता है, लेकिन और अटेम्प्ट करता है कि वो अपने विंग्स को फ्लैप करे, अपने विंग्स को फड़फड़ाए, लेकिन फिर वो डर जाता है. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. So जब वो अपने पंख फैलाकर उड़ने की कोशिश करता है तो उसको नीचे क्या दिखाई देता है? ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी. ग्रेट बहुत ज़्यादा, एक्सपेंस माने एक्सपेंशन, फैलाव, स्प्रेड. जो पूरा समुद्र जो है उसके नीचे, उस लेज के नीचे, चट्टान के नीचे पूरा समुद्र फैला हुआ था. तो उसे वो जो है लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, कई मीलों दूर तक जो है वो समुद्र उसके नीचे फैला हुआ होता है. He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. तो जो है अब उसे क्या फील होता है कि उसके जो विंग्स हैं, जो उसके पंख हैं, वो उसे सपोर्ट नहीं करेंगे और इसीलिए वो उड़ भी नहीं पाएगा. तो इसीलिए वो अपने हेड को, अपने सिर को झुकाकर जो है वापस दौड़कर जो लेज के जो चट्टान होती है उसमें जो छोटा सा होल होता है वहाँ जाकर सो जाता है रात को. His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. But for the life of him he could not move. अब उसके जो फादर हैं, जो फादर मदर, जो उसके पेरेंट्स हैं, वो जो है उस लेज के चारों तरफ आते हैं और उसको श्रिली मतलब बहुत तेज़ी से, एंड अपब्रेडिंग मीन्स स्कोल्डिंग, उसको डांटते हैं बहुत तेज़ी से और उसको
थ्रेटनिंग मतलब उसको धमकी देते हैं कि अगर वो करेज नहीं करेगा उड़ने का तो उसको यहीं पर भूखों मरना पड़ेगा। स्टार मीन्स डाई ऑफ हंगर। लेकिन अपनी लाइफ के लिए, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी वो मर जाएगा, उड़ नहीं पाएगा, तो लेकिन वो बिल्कुल भी वहां से हिलता नहीं है। That was 24 hours ago. Since then nobody had come near him. अब 24 hours हो चुके थे, ठीक है, और कोई भी उसके पास अभी तक, ना तो उसके ब्रदर सिस्टर उसके पास आए थे, ना ही उसके पेरेंट्स उसके पास आए थे। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. तो पहले दिन जो है पूरे दिन भर, ऑल डे लॉन्ग मतलब द होल डे, पूरे दिन जो उसने देखा कि किस तरह से उसके पेरेंट्स जो हैं उसके ब्रदर्स और सिस्टर को जो है फ्लाइंग के बारे में, उड़ने के बारे में सिखा रहे थे और उनको परफेक्ट कर रहे थे उड़ने की कला में, और उनको सिखा रहे थे कि किस तरह से जो सी वाटर है उसको कैसे स्किम करना है और कैसे उसको हटाना है धीरे से, और उसमें से जो है डाइव करके फिश को पकड़ना है। सो स्किम मीन्स टू मूव लाइटली जस्ट अबव अ सरफेस। तो यहाँ पर क्या है, सरफेस, सी सरफेस है, तो उसको किस तरह से स्किम करके जो है फिश को पकड़ना है। द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर fish. He had in fact seen his older brother, catch his first herring and devour it standing on a rock, while his parents circled around, raising a proud cackle. अब उसने देखा था कि उस किस तरह से उसका जो ओल्डर ब्रदर, जो बड़ा भाई था, उसने एक अपनी पहली जो है हेरिंग मीन्स सी फिश, तो एक फिश को पकड़ लिया था, अपनी पहली फिश को उसने पकड़ा था, और किस तरह से वो डिवोर इट मीन्स ईट हंग्रीली, किस तरह से वो हंग्रीली जो है उसको डिलीशियसली उसको खा रहा था, उसका टेस्ट ले रहा था, स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, एक चट्टान पर खड़े होके। जबकि उसके पेरेंट्स जो हैं उसके चारों तरफ जो है सर्कल करके उसको प्रेस कर रहे थे, कैकलिंग साउंड कर रहे थे। कैकलिंग मतलब जो बर्ड की साउंड है, तो उनको जो है उसको देखकर प्राउड फील हो रहा था, तो वो इसलिए उसको प्रेस करने के लिए कैकलिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. तो पूरे सुबह जो है, सुबह उसकी जो पूरी फैमिली थी वो उसके ऑपोजिट, जहाँ जिस लेज पर, जिस चट्टान पर वो था उसकी ऑपोजिट जो चट्टान थी वहाँ पर बैठकर पूरे दिन भर उसको जो है टॉन्टिंग करते। टॉन्ट मीन्स क्या होता है, ताने मारना, कि मतलब वो कितना कायर है। कावर्डिस है मीन्स लैक ऑफ ब्रेवरी, तो उसके अंदर बहादुरी बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल कायर है। इस तरह से पूरे दिन भर जो है पूरी फैमिली उसको ताने मारती है। द सन वॉज नाउ ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब सूरज जो है, ascend means क्या होता है, going upwards, ऊपर चढ़ रहा था आसमान में, और जो है लेज पर उसको ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, ब्लेजिंग मीन्स बर्निंग, यानी कि बहुत तेज जो है सूरज की रोशनी थी, और जो कि साउथ फेस था उस लेज का, और उसको हीट फील, उसकी गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी क्योंकि उसने पिछली रात से जो है कुछ भी खाया नहीं था। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye then the other and pretended to be falling asleep. अब उसने जो है धीरे से अपना लेज की तरफ, किनारे की तरफ जो है अपना एक पैर बढ़ाया, और उसके बाद एक पैर पे खड़ा हो गया और दूसरे पैर को जो है अपने विंग के अंदर, अपने पंख के अंदर छुपाकर अपनी आईज बंद कर लेता है, और ये प्रिटेंड करता है, बहाना मारता है कि मतलब इस तरह से शो करता है कि वो सो रहा था। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम. ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू डोजिंग विद देयर हेड्स sunk into their necks. लेकिन अभी भी जो है किसी ने उसको नोटिस नहीं किया, और उसने देखा कि किस तरह से उसके जो दो भाई और जो उसके जो ब्रदर और सिस्टर थे वो जो है चट्टान पर
डोजिंग मीन्स क्या होता है, सोना। तो किस तरह से वो झपकियाँ ले रहे थे अपने जो हेड है उसको, जो अपनी नेक है उसको नीचे को झुकाकर, किस तरह से उसके जो दो ब्रदर और सिस्टर थे वो प्लेट्यू पर आराम से सो रहे थे। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक, ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। तो उसके ब्रदर सिस्टर कोई नोटिस नहीं कर रहे थे, वो अपना आराम से सो रहे थे, और फादर क्या कर रहे थे, जो है प्रीनिंग कर रहे थे। प्रीनिंग मीन्स मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर्स। तो जो बर्ड्स होती हैं वो अपने बीक से जो है अपने फेदर्स को स्मूथ करती रहती हैं। तो उसके फादर भी जो है अपने फेदर को स्मूथ कर रहे थे अपनी बीक से। केवल उसकी मदर जो थी वो यंग सीगल को देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई hump on the plateau, her white breast thrust forward. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. तो अब वो जो उसकी मदर थी वो एक हाई हम्प मीन्स रेज्ड, जो उठा हुआ प्लेट्यू का जो उठा हुआ हिस्सा था ऊंचा, वहाँ पर जो है खड़ी हो रखी थी। और अब उसकी जो वाइट जो ब्रेस्ट यानी कि जो उसकी चेस्ट थी वो आगे को निकली हुई थी। एंड जब तक वो क्या कर रही थी, उसने अब क्या किया, दोबारा से एक जो फिश का जो एक पीस उसके पैरों पे पड़ा हुआ था, उसने उसको क्या किया, उठाया, टोर किया। टोर मीन्स फाड़ना, टीयर की सेकेंड फॉर्म। तो उसने जो है फिश के टुकड़े को फाड़ा, और उसके बाद जो है स्क्रैप मीन्स होता है रब करना। अपनी बीक को जो है रॉक पर रब करती है दोनों साइड से। क्यों रब करती है, उसको शार्प करने के लिए, अपनी चोंच को तेज करने के लिए जो है रॉक पे दोनों साइड में अपनी बीक को स्क्रैप करती है, रब करती है। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग his beak now and again to wet it. और अब जब उसने देखा फूड तो वो उसको देखकर पागल हो गया बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हंग्री था, बहुत ज़्यादा भूखा था, और उसको बहुत पसंद था इस तरह से फूड को टीयर करना। एंड अपनी बीक को जो है इधर उधर चट्टान पर रब करके उसको शार्प करना। वेट मीन्स शार्प करना। तो ये उसको बहुत पसंद था कि वो अपनी बीक को क्या करे, शार्प करे, और उसको जो पीस ऑफ फूड है उसको टीयर करे, फाड़े। गा 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 ही क्राइड, begging her to bring him some food. Gaw call a, she screamed back derisively. अब वो गा गा चिल्लाता है और बैक करता है। बैक मतलब क्या होता है, भीख मांगना जैसे बैक करता है कि मुझे जो है कुछ फूड दो, खाने के लिए कुछ दो। लेकिन जो मदर होती है वो जो है उस पर क्या करती है, चिल्लाती है। डिराइसिवली का मतलब होता है मोकिंगली मतलब मजाक बनाते हुए कि तुम बहुत बेवकूफ़ हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है। तो इस तरह से वो साउंड प्रोड्यूस करती है जब वो गा गा चिल्लाता है कि मुझे खाना दे दो।